Welcome back to part 2 of metallurgy. So, we have to start this lecture with concentration. Yeah, concentration means both things here, concentration of the mind and concentration of our ore as well. So, concentration, it has three things in this. Number one, you have to do crushing of the ore because the ore, it is a big, massive, colossal form. So, you first have to crush the ore and break it into smaller particles. Number two, you have to grind this ore and further make it into a finer powdery form, fine powder you have to make out of this. And then finally, you have to dissolve it in a particular solvent in which it will dissolve readily. Okay, so what is concentration? Concentration is the process of crushing the ore to form smaller particles and then grinding it to get a fine powder and finally dissolving it in a particular or respective solvent. Okay, now let us start this. So this was all initial things that okay, in enrichment you have removed the gangue impurities. Number two, you have concentration of the ore, the big ore or the rock particles, you have broken them into a fine powder and dissolved them. Now you finally have to start with metallurgy proper. Now the proper sequence of events that are important and will be actually asked from you. So again, we have to do this in the form of a very categorical way, that those metals which are number one in the T top of the series, reactivity series, those which are in the M middle, and those which are in the bottom. So the metals which will be in the top of the reactivity series, for them we have to do an electrolysis of the metal salt solution followed by P. सब देखो purification तो सब में करना ही है ना, तो P means purification or refining. ठीक है, so the metals which are in the top, you have to do an electrolysis of the metal salt solution. metal अपने salts के form में होगा और उसको आपको electrolysis करके metal obtain कर लोगे उसमें से. अब जो middle वाले हैं, middle में कौन कौन था? ZIP, zinc, आयरन एंड पी से पीबी यानी लेड. इन तीन का आपको पता है कि ये किस फॉर्म में अकर करते हैं. दे अकर इन द फॉर्म ऑफ कॉस, मीन्स कार्बोनेट्स, oxides and sulfate. Carbonate, oxide and not sulfate, sorry, sulfide. Okay, so all of them they have to be converted into their oxide form. तो जो already oxide form है वो तो ठीक है, but those which are present in carbonate convert the carbonate ore into its oxide form and also the sulfide ore into its oxide form. तो C से O में लाने के लिए C for calcination and C for carbonate ore. So this is very easy to remember. C for carbonate ore and C, this process is also called calcination, conversion of any carbonate ore into its oxide. No means no oxygen is required. In the absence of oxygen, you have to heat it to convert any carbonate ore to its sulfide form. And now the second different thing is roasting. Okay, sulfide ore to its oxide ore, you have to do roasting, and roasting has to be done always in abundance of oxygen. You have to heat the metal in the open, in the supply of oxygen, not necessarily open, in the supply of oxygen anyway, directly from atmosphere, or you have to have a delivery tube, whatever, through which you have to supply oxygen, and this process is called roasting. So conversion of carbonate to oxide is calcination. Conversion of sulfide to oxide is roasting, and roasting requires oxygen. Common sense, even when we do the barbecue, घर पे भी whenever we do any roasting, टिक्का विक्का बनाते हो जो भी, तो उसमें भी you need roasting. ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए मतलब रोस्टिंग में. और इसके बाद क्या करेंगे? अब हमने उसको मेटल को सबको क्या करा था? ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था. कार्बोनेट को भी ऑक्साइड में ले आए थे और सल्फाइड फॉर्म को भी ऑक्साइड फॉर्म में ले आए थे. अब मेटल ऑक्साइड से खाली मेरे को मेटल चाहिए, सो आई विल डू रिडक्शन. ठीक है, ऑक्साइड से मेटल चाहिए मतलब ऑक्सीजन को हटाना है, मतलब रिड्यूस करना है, रिडक्शन. एंड अगैन पी फॉर प्योरिफिकेशन. And those metals which are present in the bottom of the RS, they are present number one in the form of oxides and number two in the form of sulfides. So oxide है तो ठीक है, and convert the sulfide part also into its oxide form by roasting in the presence of oxygen. And roasting करके we have our metal again in the form of metal oxide. इससे oxygen हटाना है, so again reduction. And finally you have to do purification. So have a look at this table. Everything is simple. Okay, टॉप, मिडिल एंड बॉटम. टॉप में इलेक्ट्रोलिसिस, वन वर्ड. मिडिल में कॉस, तो सबको ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, कैल्सिनेशन करो, रोस्टिंग करो, ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करो रिडक्शन के थ्रू, और फाइनली पी तो सब में कर ही रहे हो. और बॉटम में तो सिर्फ सल्फाइड के फॉर्म में ही और ऑक्साइड के फॉर्म में, तो रोस्टिंग करो खाली, एंड अगेन रिडक्शन एंड देन प्योरिफिकेशन एट द एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल ऑफ देम. सो लेट्स स्टार्ट विद दोज विच आर प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. सो इसमें मैंने बताया था कौन से दो हम इंटरेस्टेड हैं एनसीईआरटी में, सी एंड एम.
ठीक है, सिल्वर गोल्ड उन सब की बात नहीं करेंगे यहाँ पर. विल टॉक अबाउट CM, दैट इज कॉपर एंड मर्क्यूरी. लेट्स स्टार्ट विद मर्क्यूरी फर्स्ट. मर्क्यूरी जैसे कि बॉटम में है तो मर्क्यूरी भी ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है. सो HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये नाम आपको याद रखना है. मर्क्यूरिक सल्फाइड इज कॉल्ड HgS, दिस इज कॉल्ड सिनाबार. ओके, सिनाबार नाम से 1 मार्क में कुछ पूछ सकते हैं सिनाबार से रिलेटेड. सो सिनाबार दैट इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड सिनाबार. ओके, सो अगैन द फर्स्ट स्टेप. नाउ स्टेप नंबर 1 रोमन न्यूमरल में लिखा है मैंने, रोस्टिंग सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे इन द O2 दैट इज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. क्या कर रहे हो, HgS को HgO में कन्वर्ट करने, सल्फाइड टू ऑक्साइड. सो Hg की बात हो रही है, Hg का सल्फाइड HgS, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 होती है, Hg की +2 सल्फाइड की -2, वैसे ही Hg की +2 ऑक्साइड की भी -2. सो HgS HgO. कैसे करोगे, रोस्टिंग में यू नीड ऑक्सीजन, पर्पल से हर जगह ऑक्सीजन को डिनोट किया है. HgS + O2 गिव्स HgO + SO2. जितने भी रोस्टिंग रिएक्शंस आएंगे पूरी दुनिया में, पूरे मेटलर्जी में, तुम्हारे 10th में इस चैप्टर में 2-3 जगह और आएगा, सारे रोस्टिंग रिएक्शंस की मैं तुम्हें गोल्डन ट्रिक बता रही हूँ बैलेंसिंग करने की. यू कैन सेव 1 or 2 minutes इन द एग्जाम. इफ़ दे एवर आस्क यू एनी रोस्टिंग, यू हैव टू रिमेंबर बैलेंसिंग में एवरीवेयर इट इज़ 2 और सिर्फ ऑक्सीजन के सामने इट इज़ 3. और वो भी लॉजिकल है क्योंकि ऑक्सीजन हम बार बार कह रहे हैं अबंडेंट अबंडेंट अबंडेंट, तो ऑक्सीजन के सामने 3 लगाना है. एल्स एवरीवेयर पुट अ 2 एंड योर बैलेंसिंग इज डन फॉर ऑल every and any roasting reaction. it is 2 2 2 and ऑक्सीजन के सामने 3. ठीक है, सो इसमें मैंने क्या करा, सल्फाइड ओर को, मर्क्यूरिक सल्फाइड को मर्क्यूरिक ऑक्साइड में लिया आई मैं. अब मुझे ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड नहीं, आई जस्ट वांट माय मर्क्यूरी मेटल ओनली, सो आई हैव टू रिमूव दिस ऑक्सीजन. सो एक्चुअली मर्क्यूरी इज़ अ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल. सो मर्क्यूरी का जो ऑक्साइड बनता है वो भी बहुत वीक डुगमुग डुगमुग ऑक्साइड होता है, उसको आप सिर्फ ज़रा सा हीट कर देते हो, सो मर्क्यूरी अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है. दैट्स दैट सिंपल, इजंट इट? यस ऑफ कोर्स. और हाँ, रोस्टिंग में भी यू हैव टू पुट अ डेल्टा. हीट तो आप रोस्टिंग में भी करते हैं, कैल्सिनेशन में भी हीट करते हैं. और मर्क्यूरी के फॉर्म में जो सेकंड स्टेप था, मर्क्यूरी के ऑक्साइड से मर्क्यूरी मेटल का आना, वो भी सिर्फ हीट करने पर ही, क्योंकि मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज़ अ वीक ऑक्साइड, इट रेडिली सेपरेट्स इनटू मर्क्यूरी मेटल एंड ऑक्सीजन गैस. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज़ डन. नाउ कमिंग टू नंबर 2 कॉपर. कॉपर में भी क्या करोगे, कॉपर इज ऑल्सो इन द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. तो कॉपर भी ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है Cu2O एंड सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं Cu2S. तो ऑक्साइड है तो ठीक है, पर सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करो. नंबर 1 इज रोस्टिंग, Cu2S को Cu2O में लाना है. अगेन द सेम रोस्टिंग का वही इक्वेशन है जो मैंने तुम्हें बताई थी ट्रिक. अभी क्या ट्रिक थी, 2 2 2 और ऑक्सीजन के सामने 3 और डेल्टा भी लगा देंगे. तो Cu2S + O2 गिव्स Cu2O + SO2. मतलब मुझे कॉपर अब ऑक्साइड के फॉर्म में मिल गया. अब मेरे को स्टेप 2 में क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में उसको लाना है, मेटल चाहिए मुझे तो सिर्फ. सो MO मेटल ऑक्साइड से मेटल चाहिए मुझे. सो एक्चुअली इंडीड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, गूगली है, कि जो कॉपर सल्फाइड होता है वो पूरा का पूरा कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर 100 इसके कंपाउंड लिए थे, कॉपर सल्फाइड के 100 आपने लिए थे मॉलिक्यूल्स, तो उसमें से मान लो 70 ही कन्वर्ट हुए थे कॉपर ऑक्साइड में. मतलब 30 अभी भी बचे हुए थे जो कि रिएक्ट नहीं करा. तो 30 ने रिएक्ट नहीं करा, उनको स्टेप 2 में वापस रिएक्ट करवा उन 30 कॉपर सल्फाइड को उस कॉपर ऑक्साइड के साथ जो स्टेप 1 में बना था, जो स्टेप 1 में बना था. ठीक है, तो जो Cu2S क्या है, द नॉन रिएक्टेड या रेसिडुअल या लेफ्ट आउट Cu2S विच डिड नॉट कम्प्लीटली रिएक्ट इन द फर्स्ट स्टेप टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. जो बचा हुआ है ना, लेफ्ट ओवर, द लेफ्ट ओवर लेफ्ट आउट जो भी कहोगे Cu2S, उसको Cu2O के साथ आप रिएक्ट करवाओ. ठीक है, तो इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस Cu2S Cu2O, Cu2S + Cu2O, Cu2S Cu2O, Cu2S + Cu2O में कॉपर + SO2. इसकी बैलेंसिंग देख लो, 2 है और यहाँ पर 6 है. ठीक है, तो मेरे को फाइनली फिर से अपना कॉपर मेटल मिल गया. एंड आई विल एंड इट हियर. सो मिडिल वाले वील स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3 in the with this, that is the metals which are present in the middle of the reactivity series. So I'm signing off here. Thanks a lot for watching.